Next topic is mineral acids and organic acid. What is the difference between mineral acids and organic acid? Mineral acids obtained from non-living things, while organic acid obtained from plants and animals. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid, carbonic acid are mineral acids. Citric acid, tartaric, malic, oxalic, acetic, formic. All these are organic acid. Citric acid present in lemon juice. Tartaric acid present in tamarind. Malic acid present in apple. Oxalic present in tomatoes. Acetic present in vinegar. Formic acid present in sting of ant and bees. Strong acid and weak acid. Those acids which dissociate completely. Weak acid which dissociate partially. If you take 100 molecules of an acid, if almost all the molecules give H plus ion, then it is strong acid. If only 10 to 12 or around 20 or very less number of molecule give H plus ion, then it is weak acid. You need to remember hydrochloric, sulfuric, nitric and perchloric acid, strong acid. All other acid which contain carbon are weak acid, and rest of acid which we covered in mineral acid are weak acid. Carbon containing acid are weak acid. Now we are going to cover strong base and weak base. Which dissociate completely is strong base, which dissociates partially weak base. Example, group 1 and group 2 hydroxide. Except beryllium magnesium hydroxide are strong base. Weak base, nitrogen containing base and rest group base are weak base. For example, ammonium hydroxide is weak base. Clear? Next topic is dilution of acid. What is dilution? To decrease concentration of any solution. For dilution, we add solvent to that solution. Normally we use water as a solvent. So dilution of acid means addition of water to acid solution. When we mix acid and water, we observe that container become hot. Means this process is exothermic.
अगर हम किसी भी कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ देखेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस, देन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. While dilution, we need to take some precautions. Water never added to acid. कभी भी हमें वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए. इसका रीजन क्या है? ये जो प्रोसेस है हाईली एक्सोथर्मिक है. So due to high energy, acid suddenly get wild and splash out. As a result, acid get wild and splash out. May damage स्किन ऑफ ऑपरेटर. जो भी डाइल्यूशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होगा उसके स्किन के ऊपर एसिड आ सकता है. आपको पता है एसिड का नेचर क्या है? कोरोजिव. वो स्किन को डैमेज कर सकता है. इवन जिस कंटेनर के अंदर हम डाइल्यूशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं वो ब्रेक भी हो सकता है. सो रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड. We studied definition of acid and base. Acid are those substances which give H plus ion in aqueous solution. Means we are using water as a solvent. What is the role of water in dissociation of acid? Water attract acid molecule part and dissociate it. जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिड मॉलिक्यूल्स के पार्ट को अट्रैक्ट करेंगे और डिसोसिएट करेंगे. सो इट गिव H plus and नेगेटिव पार्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में प्लेस करें तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल इसके पार्ट को अट्रैक्ट करेंगे. यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच्ड है. जो टेबल में राइट साइड में लाई करता है उसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा. जो लेफ्ट में लाई करेगा उसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा. इस सिंबल को हम बोलते हैं पार्शियल. नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव. सिमिलर वे में हम वाटर मॉलिक्यूल के लिए भी देख सकते हैं. ऑक्सीजन राइट में लाई करता है, यहां पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव. अब वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट एसिड मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा. इस अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. एंड गिव cation and anion. This means water molecule dissociate acid, generate
H plus ion. So this is the role of water in dissociation of acid molecule. फिर से आप देख लें, water molecule attract acid molecule part and dissociate it. Ultimately, acid molecule give positive and negative part. Positive part is H plus. Those substance which give H plus are called acid. तो यहां पर जो हम एसिड मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसके दो पार्ट होंगे, एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव. हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जो टेबल में राइट साइड में लाई करता है उसके पास थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, जो लेफ्ट साइड में लाई करेगा उसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव. ऐसे वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में पीरियोडिक टेबल में राइट में लाई करता है, तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव. इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है. ये ग्रुप पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, ये नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अल्टीमेटली ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और डिसोसिएट होकर हमें केटायन और अनायन प्रोवाइड कर रहा है, मींस H प्लस आयन एंड नेगेटिव पार्ट प्रोवाइड कर रहा है. सो इन दिस वे वाटर डिसोसिएट एसिड. We just completed role of water in dissociation of acid. Some questions can be asked regarding that. Dry HCl do not give litmus test, while with moist litmus paper give litmus test. Explain. अभी हमने स्टडी किया वाटर एसिड मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन. अल्टीमेटली जनरेट H plus ion. When we get H plus ion, then litmus test can be performed. Otherwise, we can't perform litmus test. In dry condition, HCl do not undergo dissociation, while in moist condition, HCl undergoes dissociation, give H plus ion. So give litmus test. Write down answer of this. In moist condition, HCl undergoes dissociation with the help of water and give H plus ion. So turns blue litmus into red. Hence give litmus test. Second question. Distilled water, sugar solution do not conduct electricity, while acid or base solution conduct electricity. कंडक्शन के लिए चार्ज रेस्पॉन्सिबल है. कौन सा चार्ज? मूविंग चार्ज. सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. हमने स्टडी किया था जब भी आपके पास मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो तो उस केस में मेटल के पास तो पॉजिटिव आएगा, नॉन मेटल के पास नेगेटिव आएगा. कोवलेंट मॉलिक्यूल में थोड़ा नेगेटिव आता है, थोड़ा पॉजिटिव आता है. नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज कोवलेंट मॉलिक्यूल. वहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट मिल भी सकते हैं और नहीं भी. डिस्टिल्ड वाटर, sugar solution do not conduct electricity because there is no ion present in the solution. But acid or base solution contains ions, so conduct electricity. Or you can say that acid or base in water undergo dissociation, give cation and anion, so responsible for conduction. Clear? नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर. इट इज ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर विच शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच. एक्चुअली हमने एक पेपर के ऊपर डिफरेंट केमिकल्स की कोटिंग की हुई है. जब आप उसे किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसकी पीएच के अकॉर्डिंग एक ये पार्टिकुलर कलर शो करेगा. आपको पता है पीएच स्केल की रेंज क्या है? 0 to 14.
तो जब हम पीएच पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की पीएच के अकॉर्डिंग वो पार्टिकुलर कलर शो करेगा। तो यहाँ पर जो रेडिश ऑरेंज और येलो कलर है वो एसिड से बिलोंग कर रहे हैं, ब्लू वॉयलेट और पर्पल कलर बेस से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रीन कलर न्यूट्रल से बिलोंग कर रहा है। जितना डार्क कलर हो रहा है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर है, जितना डार्क कलर हो रहा है उतना ज्यादा बेसिक नेचर है। We have to solve some question on the basis of this pH paper color. The color of pH paper expected in lemon juice, water and dilute NaOH out of these three colors. First of all we have to determine nature of this solution. Dilute NaOH क्या है? Base. Water is neutral. Lemon juice is an acid. तो यहां पर एसिड का कलर इससे बिलोंग करना चाहिए, तो यहां पर एसिड रेलेवेंट कलर रेड दिया हुआ है, न्यूट्रल रेलेवेंट कलर ग्रीन दिया हुआ है और बेस रेलेवेंट कलर ब्लू दिया हुआ है। तो लेमन जूस क्या है? एसिडिक, इसलिए यहां पर हम कलर क्या लिख रहे हैं? रेड। वाटर न्यूट्रल है, इसलिए हम यहां पर कलर राइट कर रहे हैं ग्रीन। डाइल्यूट NaOH बेसिक है, तो इसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bottles 1, 2 and 3 solutions tested with pH paper show color blue, violet and red. We have to decide pH. First of all we have to determine acidic or basic nature. Red color belongs to acid, blue and violet belong to basic. और आपको पता है एसिड की pH बेस से कम होती है, तो थर्ड सॉल्यूशन की जो पीएच है वो सबसे कम होगी। आउट ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट विच वन इज मोर बेसिक? वॉयलेट। और जो जितना ज्यादा बेसिक होगा उसकी उतनी ज्यादा पीएच होगी। तो यहां पर ब्लू सॉल्यूशन फर्स्ट में, जो ब्लू इंडिकेटर है वो फर्स्ट सॉल्यूशन से बिलोंग कर रहा है, वॉयलेट सेकंड सॉल्यूशन से बिलोंग कर रहा है। तो जितना ज्यादा बेसिक नेचर होगा उतनी ज्यादा पीएच होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलर चेक कर रहे हैं वो किस से बिलोंग कर रहा है। ये एसिड से बिलोंग कर रहा है और ये बेस से। एसिड की पीएच बेस से कम होती है। अब बेस में जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा उसकी पीएच भी ज्यादा होगी।